गुरु साहिब जी सेवक कै भरपूर जुग जुग। वाह गुरु तेरा सब सदका। निरंकार प्रभ सदा सलामत। कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरै तै अगनत। तिनको मोह पया मन मद का। 84 लख जोन उपाई। रिजक दिया सब हूँ को तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग। वाह गुरु तेरा सब सदका। सज्जन सच्चा पातशाह श्री शाहां दे शाह। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाह। वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला तीजा। घर दूजा चौपादे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एहो धन अखोटा नानक खुट्टा ना जाए। पूरा सतगुर दिया दिखाए। एहो धन अखुट नानक खुट्टा ना जाए। पूरा सतगुर दिया दिखाए। अपने सतगुर को सद बल जाई। गुर कृपा ते हर मन वसाई। से धनवंत हर नाम लिव लाए। गुर पूरा हर धन पर गासिया। हर कृपा ते वसा मन आए। रहाव अवगुण काट गुण हृदय समाए। पूरे गुर का सहज सुभाए। पूरे गुर की साची बाणी। सुख मन अंतर सहज समाणी। एक अचरज जन देखहु पाई। दुविधा मार हर मन वसाई। नाम अमोलक ना पाया जाए। गुर प्रसाद वसा मन आए। सब मह वसा प्रभ एको सोए।
ਗੁਰਮਤਿ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਹਿਜ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਸਹਿਜ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु की प्यारी साध संगत जीओ, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਸੋਦਰ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ। 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰ ਹਰੇ, ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਵਖਿਆਨਾ। ਨਾਨਕ ਪਕੜੀ ਟੇਕ ਏਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਖੈ ਨਿਧਾਨ। ਏਕ ਬਸਤ ਦੀਜੈ ਕਰ ਮਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪੋ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਔਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਕ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਆਓ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮ ਦਾਨ, ਸੋ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਬਸਿਖੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ जितने भी कर्म धर्म लोग करते ने पर अंदर परमात्मा की प्रीति नहीं है, जो केवल दिखावे मात्र ने, उन्हां बाबत महाराज चानना पाउंदे ने। कहंदे जितने भी कर्म ने तीर्थ दान पुण्य संजम नेम, जितना चिर परमात्मा दी अंदर प्रीति नहीं है कोई भी कर्म सफला नहीं है। यो पाक बाणी है जिहदे बाबत गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहंदे ने, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी, अंतर हर नाम बासना समाणी। जे पुरख सुनै सो होए निहाल, जे पुरख सुनै सो होए निहाल। नानक सतगुर मिलिए पाइए नाम तनमाल। कहंदे जेड़ा भी बाणी दी विचार नूं सुनदा है वो निहाल होवेगा, भाव मुरादबंद। निहाल फारसी दा लफ्ज़ है। बाणी नूं सुनन वाला, गाउण वाला, हिरदे च वसाउण वाला निहाल होवेगा, भाव ओदी हर मुराद पूरी होवेगी, कामयाब होवेगा। ओदे जीवन विच कोई विघन नहीं रहिंदा, पूर्ण काम। सो महाराज दी जिहड़ी ये पवित्र बाणी है, महाराज कहंदे देखो ये नाम दा प्रताप है। जे नाम नहीं, प्रभु दा प्रेम नहीं, बंदगी नहीं, ते कामयाबी नहीं, फिर तीर्थ वर्त रखे किसे काम आउण वाले नहीं। कहंदे लोग की करते ने तीर्थ नान,
ਜੇ ਤੇ ਥੱਥੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਤੀਰਥ। ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ। ਬਥੇਰਿਆਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਨੌਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਰਥ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਤੀਰਥ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 860 ਤੀਰਥ ਜਹ ਸਾਧ ਪਗ ਤਰਹਿ ਤਹਿ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਨਾਮ ਉਚਰਹਿ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੀਰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖੋ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਪੁਰਸ਼, ਉੱਥੇ ਗੁੱਡ ਵਾਈਬਸ, ਗੁੱਡ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਚੰਗੀ એનર્ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੰਗਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁੱਡ ਵਾਈਬਸ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਬਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਵਨ ਸਾਇੰਸ ਬਲੀਵਸ ਦੈਟ ਦੇयर ਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟੀਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ। ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਜਲਦੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਏ, ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਤਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਰਾਗ ਦਵੈਖ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਨੇ,
मैली भावना है तो जेड़े मर्जी तीर्थ ते चलिया जा, तैनू निजात नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, बैकुंठ नहीं मिलेगा, सचखंड नहीं मिलेगा। हाँ एक गल है, लोग बड़ा तैनू वड्याउणगे भी ये नागा नहीं पाउंदा, इन्ने सालां तो तीर्थां ते जा रहा है, लोक पतीना कशु ना होवै ना ही राम याना। पर रब चम नहीं वेंदा भी तू किन्नी बार चल के गया, वो मन वेंदा है। ते जे मन विच मैल है, ठीक है, तेरा चम वेख के, धार्मिक लिबास वेख के, तेरी बाहरली किरत वेख के भी बड़ा तीर्थां दे जांदा, लोग तैनू संत मन लैण, तेरे अगे झुक जाण। रब काका नहीं है, याना नहीं है भी तेरा चम वेख के, तेरी बाहरी करनी वेख के प्रभावित होवेगा। जे अंदर मैल है, महाराज कहंदे तू उसनू पा नहीं सकदा। सो तीर्थ ते गए, मन विच मैल है, मन विच खोट है। कई तो तीर्थां ते जुत्तियां ही चुकण जांदे ने, ते जे कोई नहाउंदा ते उहदे कपड़े चुक के भज जांदे ने, किसी दा परस चोरी कर लैंदे ने। हुण इन्हां दा तीर्थां ते क्या दसो किहड़े करे है। सो बंदगी महापुरुषां कीती ते वो जगह तीर्थ बन गई। हुण तुसीं बंदगी करोगे ते तुहाडा उन्हां संतां वांग जीवन सफला है। जे आखो भी तीर्थ ते गए चुभी ला लई गल बन जावे, कहंदे नहीं बनेगी। गुरु ग्रंथ साहिब ने मुक्ति का साधन दस्या है, 68 तीर्थ हर नाम है किलविख काटन हारा। परमात्मा का नाम 68 तीर्थां नालों भी महान है, और जितने भी तेरे किलविख ने पाप ने सब नूं कट्टण दे समर्थ है। नाम तो वध के कोई तीर्थ नहीं है। नाम दी बरकत है। नेम ऑफ द लॉर्ड इज द इरेडिकेटर ऑफ द सिंस। सारे ही पापां नूं मिटाउणा है ते कहंदे नाम जप। एक जगह होर आउंदा, कहंदे 68 तीर्थ तिस संग रह है, जिन हर हिरदय रहया समाए। कहंदे जिहदे अंदर नाम प्रगट है ना, जिहड़ा नाम जपदा उहदे ते नाल ही 68 तीर्थ रहिंदे ने। उहदे नालों वड्डा कोई तीर्थ नहीं है। बाणी चाहुंदा ना, तीर्थ बड़ा के हर का दास। भगत जन कहंदे ने तीर्थ वड्डा है कि हरि दा दास, क्योंकि जिथे भी हरि दा दास कदम पा दवे। फिर पढ़ दवा, 68 तीर्थ जहे साध पग तर है, उथे ही तीर्थ बन जाता। फिर वड्डा ते महापुरुष होया, जिहदे चौंकड़े करके वो जगह पाक हो गई, वो पवित्र हो गई जगह। सो महाराज कहंदे ने, देख बड़े तीर्थ नाल आए, दया दम दान। दया कहंदे ने दूसरे दे दुख नूं वेख के द्रवित हो जाना, द्रव जाना, रहम करना। करुणा करनी, किसे ते तरस खाना। एक शेख सादी होया, बड़ा वड्डा अरबी फारसी दा विद्वान। वो कहंदा जिस इंसान विच दया नहीं ना, वो पशु है। जिन्हों किसी ते तरस नहीं ना आउंदा, जिन्हों किसी ते दया नहीं आउंदी, किसी गरीब गुरबे नूं नंगिया वेख के जिहड़ा लिबास नहीं दे सकदा, भुखे नूं आंदरां दी भुख मिटाउण लई रोटी नहीं दे सकदा, जिहदे विच तरस नहीं है, कहंदे वो बंदा नहीं है। हाँ, जून इंसान दी मिल गई है पशु, क्योंकि पशु विच दया नहीं हुंदी, जिन्हों मर्जी ढुड मार दिंदा है। इंसान राह इंसानियत लाजमस्त, इंसान राह इंसानियत लाजमस्त, ऊद गरबू न दारद हैजमस्त। कहंदे इंसान ओ जिहदे च इंसानियत है। जै तू इंसान है
ते दया होनी लाजमी है तेरे अंदर, इंसानियत होनी चाहिए है। हुण कहंदे देखो जे चंदन विच खुशबोई नहीं है ते मामूली आम लकड़ है, उहदा कोई मुल नहीं पवेगा। जिस लकड़ च खुशबोई नहीं वो चंदन नहीं खवा सकती। हुण मनुख विच मनुखता नहीं, दया नहीं, इंसानियत नहीं, वो पशु है। जिन्हों बाणी ने इस तरह कहा है, करतूत पशु की मानस जात। जात बंदे वाली है पर करतूत पशु वाली है, क्रोधी है, दया है नहीं। सो सिख धर्म विच भी दया का उपदेश है। लोड़वंद ते दया करनी, भुखे नूं रोटी, नंगे नूं वस्त्र देना। इंसानियत का मुढ़ला फर्ज ही दया है। महाराज ने तो इथों तक कह दिता, जे तेरे च दया नहीं ते तैनू मैं धर्मी नहीं मानदा। कहंदे दया धर्म दी माता है, धर्म पुत्र है। ते जे मां नहीं है ते पुत्र कित्थों पैदा हो गया, धर्म कित्थों पैदा हो गया जे तेरे च दया नहीं है। ते लख तू धार्मिक पोशाका पाई फिर, जे गरीब गुरबे ते तरस नहीं आउंदा ते एवें विखावा ही कर रहा है विच कुछ नहीं है। रोज पढ़ते हो जपजी साहिब विच, धौल धर्म दया का पूत। दया दा काका है धर्म, सो दया लाजमी है। सत संतोख दया कमावे यह करनी सार। जीवन विच सब तो श्रेष्ठ उच्ची सुची करनी की है, कहंदे सच बोलना ते दया धार के रखनी। इन्ना दयावान बंदे दा अदब है, सत्कार है, इन्ना उन्होंने फल मिलता है। कहंदे 8-60 तीरथ सगल पुन जी दया परवान। धार्मिक स्थल ते जाण नालों किते वध के फल है गरीब गुरबे ते दया कर लैनी। सो हुण इत्थे महाराज कहंदे तीर्थां ते गया केवल गिणती मिणती वधाउण लई ते हंकार लई फिरदा भी मेरे वांग होर कोई धार्मिक स्थानां दे उपर नहीं जांदा। जिन्नी वार मैं गया कोई होर नहीं गया। जैसी भावना नाल मैं गया मेरे वांग होर कोई नहीं गया। बस मैं चुकी फिरदा है। कहंदे कादा तीर्थ ते गया हंकार चुकी फिरदा है। अच्छा जे दया कर भी लई किसे गरीब गुरबे ते, एक नूं दे के ते लखां नूं दसदा फिरदा है भी मैं दिता है। महाराज कहंदे ना ये दया कीती किसे कम है, ना तीर्थां ते नहाया ही है किसे कम आया। दम दान दया, दम दान जेड़ा दम लफ्ज है ना, दमन करन नूं भी कहंदे ने। इंद्रियां नूं ये जेड़े अख नक कन्ना आदि इंद्रे ने गलत कर्म तो रोकना, हत्थां नूं गलत कर्म तो रोकना, पैरां नूं गलत दिशा वल चलण तो रोकना, दमन करना मैलियां भावनावां दा। पर इत्थे दम दान तो भाव है, दम दा मतलब है दमड़ा दान करना, पैसा दान करना। जे तुसीं फारसी विच वेखो ना ते दम दा मतलब परशियन विच सवास हुंदा है। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। जे तुसीं रुपये बाबत दमड़े बाबत अर्थ पढ़ना है तो वह भी गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदा है, बिन दम के सौदा नाही हाट। सो ये लफ्ज बाणी विच कई बार आया है तो ये कई अर्थ ने। इत्थे भाव है दमड़ा पैसा, दम दान जेड़ा दान लफ्ज है वह भाव खैरात देनी।
किसी दी झोली विच कुछ पा देना, वो वस्तु जो दान की जावे, किसी नूं सौंप दिती जावे। वैसे टैक्स बाबत भी दान लफ्ज़ आउंदा है, महसूल बाबत दान लफ्ज़ भी आउंदा है। इत्थे महाराज कहिंदे ने तू दमड़े दान करदा है, पैसे दान करदा है, किसे ते दया करदा है, पर हंकार है भी मैं करदा है, ये कहंदे व्यर्थ है, किसे कम नहीं आवेगा। अच्छा, एक फारसी विच दाना है लफ्ज़ है, उहदा मतलब दाणियां तो भाव, अन्न तो भाव, किसे नूं अन्न दान करना, किसे नूं दमड़ा दान करना, दयावान हो के। पर जे आखोगे ना मैं करदा, ते बाणी च आउंदा है जब यह जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मह फिरता। जे मैं ते महाराज कहंदे 84 लाख दा गेड़ ही पवेगा। ते जे ये भावना है भी जिह प्रसाद कर है पुन बहो, दान मन 8 पहर कर तिसका ध्यान, जिते ये भावना है भी परमात्मा ने किरपा कीती है, कईयां नूं ते 8 पहरी रोटी नहीं मिलती, ते मैनू दान करन वाला बनाया है, उहदा नाम जपें, फिर दान पुन सफला है, नहीं तो कहते नहीं। पुन दान जप तप जेते सब ऊपर नाम, पर नाम दी महिमा सब तो वध के है। तू दान पुन कर लै, चंगी गल है, तीर्थां ते नालिया है, तेरी भावना है जिस धर्म विच, ठीक है, पर नाम तो उत्ते ना कोई तीर्थ ना कोई दान पुण्य है, सब तो उपर परमात्मा दा नाम है। महाराज कहंदे ने हर हर रसना जो जपै तिस पूरन काम, पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम। कहंदे नाम जपण वाला उहदे सारे ही जेड़े काम ने ना नेपरे चढ़ जांदे ने, विच कोई विघन नहीं रहिंदा। सो अगे लफ्ज़ है सो संजम नेम अनेक बसेख है। कई तीर्थां ते नहाउंदे ने, दया करते ने, दमड़ा दान करते ने, पर हंकार चुकी फिरदे ने, निसफल है। अगे कहंदे सो संजम नेम अनेक बसेख है। संजम दा भाव है चंगी तरह दे नाल बन्नना, भाव इंद्रियां नूं मन नूं विकारां वालों रोक लेना, बन लेना। इहदे लई लोग संजम करते ने। कोई बर्फ विच समाधि लाउंदा है, कोई हिमालय ते चलिया जांदा है, समाधि च स्थित होके अपनियां वासनावां नूं रोकदे ने, शरीर दे नाल धक्का करदे ने। महाराज कहंदे इत्थे बड़े संजम करन वाले ने। वरत नूं भी संजम ही किया, खाण ते संजम रखना। कई वरत आदक भी रखते ने, ये संजम करते ने, अंदरां नूं दुख दिंदे ने। सो ये जिहड़ा संजम है, सिੱਖੀ च संजम की है? मन नूं, इंद्रियां नूं काम क्रोध लोभ मोह हंकार विकारां तो रोकना, पर धक्को जोरी नहीं, सजा दे के नहीं। महाराज कहंदे बस सहज दे नाल बैठ के नाम जपो, ते नाम दी बरकत ऐसी है जिवें हाथी दे उत्ते कुंडा काबज हुंदा है, नाम मन ते काबज हो जाता है। धक्के नाले रुके, इंद्रे नहीं रुकते। अखां नूं रोक भी लो तुसीं बुरा देखण तो, पर मन ते मैला ही है। दीन दुनिया दे मालक गुरु पातशाह सिੱਖੀ विच वरत बाबत भी दसते ने। कहंदे आंदरां शराफ देणगियां, इन्हां नूं क्यों भुखियां मारदा है? भुखियां रखना है, उपहास करना है, ते इंद्रियां नूं विकारां वल्लों भुखे रख।
भी ये गलत कर्म ना करन, काम क्रोध लोभ मोह हंकार विच गलतान ना हो जाण, उधरों बचा के रख, मन नूं वासना तो रहत कर, ये उपहास कर, बरती बरत रह निहकाम। गुरु ग्रंथ साहब कहते ने कामना तो रहत, वासना तो रहत होना ही असल वर्त है, तृष्णा तो रहत होना ही असल वर्त है, इंद्रियां नूं विकारां वल्लों भुखे रखना ही असल वर्त है। अगे लफ्ज वरत्या है नेम। नेम का मतलब है असूल, कायदा, कानून, प्रतिज्ञा। जिमें जोगी खट नेम करते ने, वो खट नेम रखते ने ना, खट चक्कर, छे चक्कर आदि पाउण नूं उल्टा चलाउंदे ने, उन्होंने छे चक्कर मन्ने ने। ये जोग मत दे नाल संबंधित है। जिमें मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, मणपुर चक्र, इस तरह के 6 चक्कर ने। अनाहत चक्कर, विशुद्ध चक्कर। हुण ये आग्या चक्कर आदि जिहड़े 6 चक्कर ने ना, नेम दे नाल बैठदे ने, पौण नूं उल्टी चलाउंदे ने, दसम द्वार खोलदे ने। हुण गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह कहंदे ने, देख तू विशेष करके कुछ नेम रखे हुए ने। कई ना चातुर्मास विच भूम आसन लाउंदे ने, धरती पुट के आसन लाउणा 4 महीनों लई, ते बाकी 8 महीने कुछ नहीं करना, कोई रब दा नाम नहीं, कहंदे किसे काम नहीं आवेगा। ये नेम रखे किसे काम नहीं आने। सिੱਖੀ विच नेम की है? बिना नागा सहज दे नाल बैठ के परमात्मा दे गीत गाउने। पौण नूं उल्टी चला के दसम द्वार जाण दी की लोड़ है? 6 चक्रां नूं भेदण दी की लोड़ है? कहंदे मन नूं संसार तो उल्टा चला के परमात्मा नाल जोड़, सारे ही चक्कर विन्ने जाणगे, दसम द्वार खुल जावेगा, परमात्मा प्राप्त हो जावेगा। कबीर जी ने भी बड़ा सुंदर कहा है, कहंदे सवास उल्टे चढ़ाउण नाल की है? मन नूं उल्टा चला, परमात्मा दे नाल जोड़, संसार वालों तोड़ के। उल्टत पवन चक्कर खट भेदे, सुरत सुन अनुरागी। सुरत नूं परमात्मा दे नाल जोड़ लेना, अनुराग प्रीति पैदा कर लेनी, मन अंदर परमात्मा दे प्रति संसार तो विपरीत निरंकार वाल मन नूं चला लेना। यही 6 चक्कर भेदने ने। इहदे नूं वड्डा कोई नेम नहीं है, कोई कर्म नहीं है। फिर की होवेगा? आवे ना जावे, मरै ना जीवै, तासो खोज बैरागी। फिर तेरा आवागमन मिट जाएगा, असल वैरागी तू बन जावेगा, परमात्मा विच अभेद हो गया, असल मुक्ति फिर मिलेगी। होरां नेमां नाल मुक्ति नहीं मिलनी। मेरे मन ही उल्ट समाना, उल्टा चल पा संसार वालों, काल पुरख दे नाल जुड़ पा। गुर प्रसाद अकल पई अवरो, नातर थां बेगाना। सो सिख जगत अंदर नेम की है? मन नूं परमात्मा नाल जोड़ लेना। हुण कहंदे तू दया कीती, दमड़े दान कीते, तीर्थां ते गया, दया कीती, दमड़े दान कीते ते कहा मैं करन वाला हाँ। संजम रखिया, कहा मैं बड़ा संजमी हाँ, मैं इंद्रे रोक लए ने। नेम रखे, मैं बड़ा नेमी हाँ, बड़ा मेरा चौंकड़ा है। कर्म धर्म कीते ते इसलिए परमात्मा मिले, पर वो हंकार वध गया। ते कहंदे जिस मन दे भांडे विच हंकार है, उत्थे रब नहीं टिकदा। वाद अहंकार ना ही प्रभ मेला। जिथे हंकार है उत्थे प्रभु दे नाल मेल नहीं हो सकता। मन दे पावै नाम सोहेला, जिथे मैं छड़ दिती मन ने, उथे नाम मिलेगा। जिस मन दे भांडे विच मैं है, उथे रब नहीं बहिंदा। भांडा दे अगे भरिया हंकार नाल, जिथे हंकार नहीं परमात्मा उथे बहिंदा है। ठीक है, तू दान पुण्य कर लै भाई,
तेरी जिस धर्म विच भावना है उहदे तीर्थां ते तू चलिया जा, जिन्ना चिर मैं है रब नहीं मिलेगा। कोई भी कर्म करें प्रात्मा दी जे प्रीति है अंदर फिर सफला है। सब तीर्थ वरत जग पुन तो लाहा। कहंदे एक गल दा ख्याल रखी, हर हर नाम ना पुजा है पुजाहा। एक तकड़ी विच तीर्थां ते जाना पाला, संजम नेम दमड़े दान ये सारे कर्म पाला, ते एक तकड़ी विच नाम पाला। नाम दे बराबर कोई कर्म नहीं है। सो नाम जपिया कर कहंदे सारे कर्म धर्म विचे आ जाणगे। ऐसी महानता है नाम दी, जिस दे कोल नाम धन है, जिहदे कोल बंदगी है हर हर जाप ताप व्रत नेमा। वर्त नेम विच ही आ गए, जिहदे कोल हरि दा जाप है। हर हर ध्याए कुशल सब खेमा। नाम नू जपण वाला जिहड़ा है कुशल तो भाव है उन्होंने सुख मिलिया। खेम तो भाव है रखिया पई उसकी, विकारां तो बच गया, रोगां सोगां तो बच गया जिहदे कोल नाम है। अगे महाराज कहंदे ने वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सबान के पेखै। पुराण कहंदे ने हिंदू वीरां दे अंदर जो प्राचीन ग्रंथ ने, पुराणियां साखियां जो ने, 18 पुराण गिने गए ने। प्राचीन प्रसंग वड्डियां वडेरियां दियां जिहड़ियां साखियां ने सनातन मत अंदर। कतेब कुरान, चाहे वेद ने, 4 वेद ने सनातन मत दे धार्मिक ग्रंथ, चाहे पुराण ने प्राचीन साखियां ने। कतेब कुरान, कुरान वो पुस्तक वो किताब जो पढ़न जोगे है। मुसलमान वीरां दा धार्मिक ग्रंथ जो है, कहंदे जो परमात्मा वल्लों हजरत मुहम्मद जी नूं बोल प्राप्त होए। कहंदे तू वेदां नूं घोख लिया, पुराण घोख लई, खोज कर लई, कुरान पढ़ लई। जमीन जबान सबान के पेखै। जमीन इस धरती दे जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ ने, अगे लफ्ज है जमान, ते जेड़ा जमान लफ्ज है ना, जमान दा भाव है आसमान। हुण महाराज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने आसमान मात लोक किधरे भी दौड़, जितने भी प्रचलित धार्मिक ग्रंथ ने कहंदे तू पढ़ लाए सारे। जमान लफ्ज समय लई भी आया है। जे तुसी अरबी विच पढ़ो ना, वेले नूं भी कहंदे ने समय नूं। जमीन जमान, इस जमीन ते मात लोक ते जिन्ने भी जमान ने, समय ने, भाव पिछे भूतकाल जां अज दा समा है, भवान है, वर्तमान है, कोई भी समा है। किसी भी समय दे किसी भी धर्म दे तू धार्मिक ग्रंथ पढ़ ले, खोज कर लई। कहंदे असीं देखे हुए ने सारे। अगे महाराज आखण लगे सरबगता दे नाल लोक परलोक दे भी धार्मिक ग्रंथ भावें पढ़ लए। पौन आहार जति जत धार, सब ऐसो विचार हजारक देखै। बड़ी विद्या पढ़ लई, धार्मिक ग्रंथ पढ़ लए। हुण एक ऐसे कई अभ्यासी पुरुष हुंदे ने जो ऑक्सीजन दे विचों, हवा दे विचों ही डाइट लै लैंदे ने, पौन आहारी हो जाते ने। पौन दे आधार ते जीवना सिख लैंदे ने, भोजन की इन्हां नूं लोड़ नहीं रहिंदी। ऐसी अवस्था हासिल हो गई। ये तो वेखो साइंटिफिक गल है ना, इट्स द साइंटिफिक थिंग
We mostly need oxygen for living. जीवन ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ। परमात्मा कर सकता है इफ इट प्लीजेस गॉड। जे रब नूं चंगा लगता है तो कहंदे उहदे विच इह ताकत है, वो तैनूं रख सकता है सवासां तो बिना भी। हुण महाराज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे कई पौण आहारी हो गए, उन्हां दे विच इह बरकत आ गई, ये ताकत आ गई, वो पाउण दे आसरे रहना सीख गए। वेखो एक दृष्टांत है, जिहड़ा सप हुंदा है ना, लम्मा समा पानी तो बिना रह सकता है। हुण पानी तो उन्होंने छेती कीतियां किसी ने पीण नहीं देना। जे खूह कोल गया तो उत्थे भी किसी ने इटा रोड़ा मार के मार देना, क्योंकि जहरीला बड़ा, लोग डरदे ने। जहरीले सुभाअ दा है, ना किसी ने नलके दे कोल ही फड़कण देना है, ना खूह दे कोल ही, ना मोटर दे कोल ही, ना टैंकी दे कोल ही। वेखदे ही लोग मार दिंदे ने, उहदे इदां ध्याया ही मर जावेगा। पर परमात्मा ने एक इहदा भी हल कढिया है। सप दे ना तालूए कोल एक शाला हुंदा है अंदर। हुण वो जिहड़ा शाला है जिस चों जहर पैदा हुंदा है, वो बंदे मारन नूं नहीं लाया रब ने उहनूं, उहदा एक कारण है। वो एक ऐसा सॉल्ट उस शाले विच है भी जदों सप मूँह खोलदा है ना, हवा टकराउंदी है उस शाले दे नाल, ते उस शाले दे नाल हवा टकरा के स्पर्श खा के पानी दा रूप अख्तियार कर लैंदी है। हवा पानी दा रूप धार के उत्थों टपकदी है। जदों भी वो साह लैंदा है, मूँह खोलदा है, शाले नाल हवा टकराउंदी है ते वो पानी दा रूप धार लैंदी है। तुसीं हैरान रह जाओगे। हुण जिहड़ा डेजर्ट है, जिथे रेत है, निरी रेत, कोई पानी दा कुआं नहीं, कोई छपड़ी नहीं, कोई नदी नहीं, किन्ने सप हुंदे ने डेजर्ट विच, उन्हां नूं तां पानी मिलदा नहीं, फिर किदां जिंदा रहिंदे ने? पौण आहार, पौण दे आसरे, हवा दे आसरे परमात्मा ने प्रबंध कीता है। अमरीका कनेडा च लोकां बड़े सप पाले ने। एक रैटल स्नेक है, उहदे बारे पुछिओ तुसीं, वो कहंदे साल साल उहनूं पानी नहीं पिआउणा पैंदा। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੱਪ ਪਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਟਲ ਸਨੇਕ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਆਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਧਿਆਇਆ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਐਸੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਜੋ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨਾਮ ਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। अवस्था है आपो अपनी गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया दसवें आकाश, तिथै ऊंग ना भुख है, हर आत्म नाम सुख वास। कहते तिथै ऊंग ना भुख है, उथे नींद भी नहीं आउंदी, नाम रस। ऐसी कृपा है, चौंकड़ा ला के वो बैठे रहिंदे ने, उथे भुख भी नहीं लगती। ऐसी कृपा है। जेड़े गुरमुख ने ना, उन्हां दी ये अवस्था बन जाती है। उस अवस्था दे विच नो वन फील्स हंगरी, नो वन फील्स स्लीपी। किसी नूं नींद नहीं है,
किसी नूं भुख नहीं है। हुण बाणी का फैसला है, ऐसे महापुरुष होणगे। सो इदां दी अवस्था होनी। नानक दुख सुख व्यापत नहीं, जिथे आत्म राम प्रगाश। उथे दुख सुख ही है नहीं, आनंद की अवस्था है, ऐसी किरपा है उथे। सो महाराज कहंदे भाई चाहे तू पौण आहारी हो जा, तेरी इन्नी उच्ची अवस्था भी होवे। पौन आहार जति जत धार। जति जो इंद्रियां नूं रोक लवे, जिन्हें सारा जीवन इस्त्री का स्पर्श नहीं किया, विआह नहीं करवाया, हुण इंद्रियां नूं काबू करन वाला। आपां जिक्र कीता सी पहले सवैये विच भी ये लफ्ज आया सी जति। 6 जति मन्ने ने सनातन मन ने, हनुमान, लक्ष्मण जी, भीष्म पितामा, दत्तात्रेय आदक। ये गोरखे भैरव होनी जेड़े ने ना, ये जति ने। खैर साडे सिख जगत अंदर मर्यादा है। साडे जत सत तो भाव है इंद्रियां नूं बुरे कर्म तो रोकना। गृहस्थी है ते जिस नाल आनंद कारज है उहदे नाल जत सत कायम रखना। एका नारी जति होए पर नारी ती भैण वखाणा है। महाराज कहंदे तू जति है, जत दे धारने वाला है। सबै सो विचार हजारक देखै। बड़े बड़े ग्रंथां दी तू विचार करन वाला है। बड़ी तू विद्या पढ़िया आया है, बड़ा तू ज्ञानी है। हजार का मतलब आपां पंजाबी च वरतदे 1000, पर फारसी का लफ्ज है। गिणती तो भाव है 10 100 10 सहंसर। कहंदे 1000 ग्रंथ पढ़ लए, 1000 ग्रंथ पढ़ के विद्या विच निपुण हो गया। पौण आहारी भी हो जावें, जत सादा धारनी भी हो जावें। श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रति बिन एक ना लेखा। हुण महाराज पातशाह आखण लगे श्री जो श्रोमणी भगवान परमात्मा हर जरे विच मौजूद है, जो ऐसा जेड़ा परम ईश्वर है, उदा भजन नहीं कीता, बंदगी नहीं कीती, इबादत नहीं कीती। भज दा मतलब है सेवा करनी, बंदगी करनी। भू पत, भू धरती नूं कहंदे ने, पत पति नूं। धरती दा पत राजा, जां भू पत धरती दा मालक अकाल पुरख। कहंदे श्री भगवान भजे बिन भूपत। एक अकाल पुरख दे भजन तो बिना एक रति बिन एक ना लेखै। इत्थे जेड़ा रति लफ्ज है ना, वो आया प्रेम लई, प्रीति दे लई। जदों आपां पहला सवैया पढ़िया सी, उस पहले सवैये दे विच जेड़े अल्फाज आए सन, उत्थे 2 बार रति लफ्ज आया सी। श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के। उथे एक रति तो भाव है प्रीति, परमात्मा दा प्यार। जेड़ा पिछे आया एक रति के, 8 चौलां दा जेड़ा तोल हुंदा है ना, भार, उहनूं रति कह दिंदे ने। थोड़ा जिहा रंचक मात्र। हुण इत्थे महाराज कहंदे ने जिसनूं परमात्मा दे नाल प्रेम नहीं है, उहदे कर्म धर्म बहुते मायने नहीं रखते। रंचक मात्र भी फायदा नहीं है। थोड़ा बहुता भी उन्हां कर्मां दा महाराज कहंदे करन दा कोई फायदा नहीं है तुहानूं, क्योंकि तुहाडे अंदर परमात्मा दी प्रीति नहीं है। कमाई तुछ है, रति पर है। हुण इस सवैये विच जेड़ा भाव है रति, ये केवल प्रीति लई आया है, भार लई नहीं आया। जिवें बाणी चाहुंदा है ना, लाल रति सच भै वसी, पाए रति रंग रास। परमात्मा दे प्रति रत होनी, प्रेम होना।
हुण गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने एक रति बिन एक ना लेखै। जे परमात्मा दा प्यार नहीं है तेरे अंदर ते चाहे तू तीर्थां ते जा, जिन्ने मर्जी तीर्थां ते इशनान कर लई, दयावान है दमड़े दान कर लई भी मैं बड़ा दानी है दस लई लोकां नूं तूं, वर्त रख लई, संजम विच रह लई, बड़े बड़े नेम तू धर्मां दे धार लई, वेद पढ़ लई, पुराण पढ़ लई, कुरान पढ़ लई, जमीन उपर किसी भी समय अंदर लिखत विच आए धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़ लई, तू पेख लई देख लई, कहंदे पौण हारी भी हो जाई इन्नी तेरे कोल ताकत होवे, जत तू धार लई एडा त्यागी हो जावें, इस्त्री दा संग ना करें, सबै सो विचार हजार क देखै, हजारां ग्रंथां दी तू विचार कर लई, जे तेरे अंदर परमात्मा दी प्रीति नहीं है ते कोई भी कर्म धर्म कीता तेरा सफला नहीं है। एक रति बिन एक ना लेखै, कोई भी कर्म भावना तो बिना, प्रेम तो बिना, प्रभु दी प्रीति तो बिना, रत तो बिना सफला नहीं है। जिवें बाणी चाहुंदा है ना, नाम संग मन प्रीत न लावै, कोट कर्म कर तो नरक जावै। करोड़ा कर्म कर लई, जे नाम नहीं है ना, प्रेम नहीं है परमात्मा लई, केवल विखावे मात्र कर्म करदा है, सेवा कीती लोकां नूं विखाउण लई, दान कीता लोकां नूं विखाउण लई, तीर्थ नाता लोकां नूं विखाउण लई, विद्या पढ़ी वाद विवाद लई लोकां नूं विखाउण लई, कहंदे नहीं लेखे विच ये लेखे नहीं पवेगा, ये लेखे विच नहीं मन्निया जावेगा, क्योंकि तेरे अंदर परमात्मा दी प्रीति नहीं है। वेखो एक आम ही उदाहरण है, हुण तुसीं लाड़े नूं विआउण तुरना है, जंज चल पई ते ओह कुड़ी वालियां दे घर दा जाके कुंडा खड़का दिता भी जंजी आ गए ने, बच्ची नूं विआउण आ गए ने। उन्हां बूहा खोलिया ते पुछया भी काका किथे है, बरात ते आ गई, जंज ते आ गई, ते ओह लाड़ा किथे है जिहड़ा कुड़ी नूं विआउण आया। वो कहंदे जी आ चाचा आ, ताया आ, फुफड़ है, ते उन्हां कुल जान दे रिश्तेदार गिना दिते। कहंदे नहीं लाड़ा किथे है जिहड़ा लड़की नूं विआउण आया। कहंदे ओह ते आया नहीं, अगलियां कुंडा मार के दौड़ा दिता जंज नूं भी लाड़े तो बिना तुहाडी कोई कदर नहीं, भावें सारे ही तुरे फिरो इत्थे। लख तू कर्म धर्म कर ला, जे प्रेम रूपी लाड़ा नहीं है ते, जे परमात्मा नाल तैनूं प्रेम नहीं है ते फिर ये कर्म कीते हुए अजाई चले जाणगे, ये किसे लेखे विच नहीं। सो इस गल दा ख्याल रखियो, परमात्मा दा नाम, परमात्मा दा भजन, परमात्मा दी इबादत यही लेखे विच पैण वाली है। ते जे तू प्रेम पावेंगा परमात्मा नाल ते तेरे सारे ही कर्म कीते सफल, ते जे प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है, ते सारे ही कर्म धर्म मिट्टी हो जाणगे। सो पातशाह दा हुक्म यही है, नाम दे नाल प्रीति कर, नाम तो वड्डा कोई तीर्थ नहीं है, नाम तो वड्डा कोई कर्म धर्म नहीं है, नाम दे विच ही सारे कर्म ते धर्म आ जांदे ने। परमात्मा दे नाम दी ऐसी महिमा है, महाराज कहंदे ओदी रत पैदा कर अंदर, ओदा प्रेम पैदा कर अंदर। जे उसका प्रेम अंदर होवेगा परवानगी है, नहीं ते आखण लगे एक ना लेखै, लखां कर्मां चों एक कर्म भी लेखे विच नहीं है, एक कर्म भी ओदे दर ते प्रमाणिक नहीं है, प्रवानगी नहीं रखता। प्रेम है ते सारे ही प्रवान हो। सो दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह इत्थे नाम दी महत्ता विखाउंदे ने भी सिखा परमात्मा दे नाम तो उपर कुछ नहीं है। हुण तुसीं इस गल नूं समझ लो, कई वीर कह दिंदे ने ये दसम ग्रंथ दी बाणी सनातन मत ना जोड़दी है हिंदूइज्म नाल। सनातन मत विच परोड़ता है तीर्थ नहाउण दी, संजम रखण दी, वर्त आदक,
पर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते नहीं, नाम सब तो उपर है। नाम है तुहाडे पल्ले ते 68 तीरथां दा फल भी तुहाडे कोल है। संजम नेम भी करन दी लोड़ नहीं। जे नाम पल्ले नहीं, कहते श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेखै, कोई भी कर्म लेखे विच नहीं पवेगा। दास इत्थे ही विचार नूं संकोचदा है। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।